بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کو پار کر کے پنجاب میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے للکارا ہے گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، کہ ہم پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل اور ایکسٹرنل خبروں پہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ چودھری صاحبان اس وقت سب کے مرکز نظر ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی ان سے مل رہے ہیں، جو گورنمنٹ عمران خان صاحب وہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ شہباز شریف ہمیں وہی شہباز شریف ہے جو ہمیں پہلے کبھی نہیں پوچھنے آئے تھے۔ ان پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ گلوبلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، یوکرین کے اندر رشیا کا جو رول ہے وہ کیا ہے، چائنا کیا دیکھ رہا ہے، کیا چائنا واقعی وہ رول پلے کر رہا ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کا رول تھا، وہ دیوار پہ بیٹھ کے سب کو شاباشی دے رہا تھا کہ آپ اچھے لڑ رہے ہو، آپ اچھے لڑ رہے ہو، اپنے ویپن بیچ رہا تھا، کیا واقعی چائنا کچھ ایسا رول پلے کرنے جا رہا ہے؟ کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو پیکیج دیا خاص طور پہ، اس پیکیج پہ ہم اسپیشلی بات کریں گے کہ وہ بزنس کے لیے کتنا فروٹفل ہے۔ اس میں یہ جو پیسے ہیں بیسیکلی جو 10 روپے کم کیے گئے ہیں وہ لائیں گے کہاں سے، وہ کدھر سے اٹھائیں گے؟ جو پیسے آپ دیں گے تو وہ آپ کے پاس پیسے تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی بگ سے اٹھائیں گے۔ آئی ایم ایف کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے؟ آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے، فائنانس منسٹر کا، کہ اب بھی آپ نے فیول مزید بڑھانا ہے، ہم ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت ایمبیسڈر عالم بروئی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمید پی ایس پی کی سینئر رہنما ہے، میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فضل کریم دادا بھائی صاحب سینئر انالسٹ ہیں، آنرری کونسل جنرل ہیں، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں، اگر میں آپ سے یہ پرٹیکولر سوال کروں کہ اس وقت رشیا کیا چاہ رہا ہے، اور یہ جو رشیا کا رول اس وقت یوکرین میں ہے اور چائنا کا جو رول یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ہے، اس پورے سنارے میں آپ رشیا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر باٹم لائن اگر آپ پوچھیں مجھ سے رشیا وہاں کیا چاہتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ رشیا چاہتا ہے کہ یوکرین ایک نیوٹرل کنٹری رہے فن لینڈ کی طرح، اور اس میں جو گورنمنٹ ہو وہ پرو ماسکو اگر نہ ہو تو پرو اینٹی ماسکو بھی نہ ہو۔ ایک تو چیز یہ ہے کیونکہ یوکرین جو ہے اباؤٹ 2000 کلومیٹر اس کا بارڈر ہے، اور پھر ہسٹوریکلی یوکرین کی ہسٹری اور رشین ہسٹری جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ انٹرٹوائن رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ یوکرین کو دیکھ لیں تو 14 سینچری سے لے کے ابھی 23 سال پہلے آزاد ہوا ہے، اس وقت تک وہ کسی نہ کسی فارن پاور یا کنٹری کے انڈر رہا ہے۔ ٹھیک بات، پہلے بھی سیکنڈ چیز میں بتا دوں، فرسٹ ورلڈ وار میں رشیا کے پاس رہا، پھر 1991 میں یہ رشیا سے الگ ہوا۔ 1991 میں رشیا سے یہ الگ ہوا، لیکن اس میں یہ دیکھیں اس میں بھی ایسٹ اینڈ ویسٹ کا ہے، جیسے پاکستان میں ایسٹ اینڈ ویسٹ کا تھا۔ ٹھیک اب ایسٹ میں جو ہے وہ اوور 60% پاپولیشن جو ہے وہ رشینز ہیں، اور ویسٹ میں جو ہے نا وہ یوکرین کے ہیں۔ اور ان دونوں ایسٹ ویسٹ میں سے اگر کوئی پارٹ کوشش یہ کرے گا کہ وہ ایسٹ کو ڈامینیٹ کرے، ویسٹ اگر چاہے، یا ایسٹ چاہے کہ وہ ویسٹ کو کرے ڈامینیٹ، تو وہاں پہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو وہ ڈامینیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کے انٹرسٹ جدا ہیں، ان کے لینگویج جدا ہیں، ان کی ایون مذہبی جو بلیفز ہیں وہ جدا ہیں۔ اب اور سیکنڈ جو چیز ہے سب سے امپورٹنٹ رشیا کے لیے وہ یہ ہے کہ رشیا سوویت یونین کے زمانے سے لے کر وہاں جو بلیک سی میں جو ان کا فلیٹ ہے جس کے تھرو وہ پاور پروجیکٹ کرتے ہیں اپنا، سیواستوپول میں ہے، جو از دا بگیسٹ سٹی آف یوکرین، کریمیا کا ہے۔ تو رشیا کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے اور پولینڈ کی طرح نیٹو کی فوجیں وہاں پہ ڈپلائے ہو جاتی ہیں یا وہاں پہ اور سسٹم لگائے جاتے ہیں ڈیفنس سسٹم، تو نیکسٹ ان کا موو یہ ہوگا کہ وہ ہماری جو فلیٹ ہے، نیول ہیڈ کوارٹر ہے کریمیا میں، اس کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیں گے۔ تو دس واز دی
another thing. और फिर रशियंस को एक बहाना ये भी था कि वहाँ पे ओवर 60% पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ उनको सही ट्रीट नहीं कर रहे। तो इसने क्या कि क्रीमिया पे तो कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, लेकिन ईस्ट के इलाके में 2 रीजन्स में उन्होंने एक किस्म की इंसर्जेंसी स्पॉन्सर की और उसको भरपूर सपोर्ट किया। वजह सिर्फ ये था कि कीव में जो हुकूमत बैठी हुई है उस पर इतना प्रेशर हो कि वो नेटो का मेंबर ना बनाए या नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वो अपना रोक दे। जैसे उन्होंने उस वक्त इवन सेक्रेटरी जनरल गोरबाचोव के साथ उन्होंने वायदा किया था सोवियत यूनियन टूटने से पहले कि नेटो कभी भी यानी उन इलाकों में नहीं जाएगी जो सोवियत यूनियन के ज़ेरे असर रहे हैं। उसमें सेंट्रल एशिया है, उसमें जो है ना ऊपर के इलाके जॉर्जिया और आर्मीनिया है और दूसरे पोलैंड है या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन उन्होंने अपने उस वायदे पे कभी अमल नहीं किया। जैसे सोवियत यूनियन टूटा और रशियन फेडरेशन जो है वो कमज़ोर और एक कमज़ोर लीडरशिप के हाथ में, बोरिस येल्त्सिन वाज अ वेरी वीक प्रेसिडेंट, बल्कि वो पावर में भी उस वक्त रहा जब तक कि अमेरिकन सपोर्ट उसको था। और उसका सेकंड दौर था वो तो बड़ा तबाहकुन था, क्योंकि वो इतना अल्कोहलिक हो चुका था कि कहीं विज़िट पे जाता था तो खड़े हो नहीं सकता। वो कजाकिस्तान में आया था तो गिर रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था। तो पुतिन के आने के बाद रशिया ने अपना जो एज अ मेजर पावर, एज अ बिग पावर रीएसर्ट करना शुरू किया। तो अब क्रीमिया का मसला ये है कि रशियंस के लिए बॉटम लाइन ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो और नेटो की मेंबरशिप इनको न मिले और यूरोपियन यूनियन इनको अपने मेंबरशिप में न ले, तो शायद रशियंस जो है ना मान जाएंगे अपनी फ़ौज विड्रॉ करने के लिए। चाइना का पूरे इस एपिसोड में रोल क्या देख रहे हैं? देखिए चाइना का तो मैं ये कहूँगा कि देखें अभी पुतिन हमला करने से बहुत थोड़े दिन पहले जो है ना चाइना से हो गया था एंड ही हैड अ लॉन्ग मीटिंग विथ प्रेसिडेंट शी। अब मुझे अगर ये कोई कहे कि वहाँ पे यूक्रेन की सूरत हाल पे बात नहीं हुई थी दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान, यानी चाइनीज़ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान, तो मैं तो नहीं मानूंगा। ये क्राइसिस जो है वहाँ पे डिस्कस ज़रूर हुआ होगा और हुआ है, और उसमें बिलाशुबा कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और जिसकी वजह से इनको लेटेस्ट से मॉस्को को ये हिम्मत हुई कि उन्होंने इस पर, हिम्मत की बात नहीं है, मतलब इट वाज द प्लान थिंग कि हमला करने की। राइट मैं आपके पास वापस आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ एजाज़ सैयद साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। सर ये बताएं, इस वक्त इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो ऐवान हाउसेस में हैं वहाँ पे गर्मी और सर्दी चलती रहती है, तो इस वक्त क्या मौसम है वहाँ पे? देखिए इस्लामाबाद का जो मौसम है, एक पीपुल्स पार्टी वाले लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से भी गर्म होने वाला है। और दूसरा आपको पता है वैसे भी एक्टिविटी चल रही है नो कॉन्फिडेंस की, तो वो अपने मामला वो भी अलग से चल रहे हैं मामला। क्या आप समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी अपना मार्च लेके आ रही है इससे कोई असर पड़ेगा और चौधरी बरादरान के बिल्कुल एश्योरेंस देने के बाद बादी हुसैन साहब जो असल जो ताकत के असल फैसले हैं ना जी सर, या असल जंगें वो किसी और मैदान में लड़ी जाती हैं। ठीक बात। ये जो चीजें आप बोल रहे हैं ये इनकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो फैसले हैं वो अवाम नहीं करते, ये बड़ी बदकिस्मती है। तो बस ऐसा ही है फिलहाल। तो देख रहे हैं ये कुछ और है। एजाज साहब तो वहाँ से हवाओं का रुख किस तरफ है? सब देखें ये तो अभी खेल शुरू हुआ है, ठीक है, और खेल के जो खिलाड़ी हैं वो सारे कंफ्यूज हैं। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ज्यादा है अभी भी। आप इस वक्त देख रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट को कोई खास खतरा नहीं है? नहीं देखिए खतरा तो है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ज्यादा है।
जो ख़ास तौर पे PMLN है और पीपल्स पार्टी है, ये जो अपोजिशन वाले हैं, ये आपस में सिंक हैं, आपस में एक है, यकजा हैं? प्लीज दोबारा हुसैन सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन है, ख़ासतौर पे PMLN पीपल्स पार्टी, ये आपस में एक हैं, ये आपस में नोट्स अपने शेयर करते? देखिए, आपस में इनका जो एतमाद है वो नहीं है। आपस में इनके जो मफादात हैं वो टकराते हैं। ये मूव्स जो हो रही है ये एक मुश्तरका मफाद के लिए हो रही है। ठीक। जो ही किसी एक पार्टी को लगा कि दूसरी पार्टी उससे हाथ कर रही है, आप देखिएगा एकदम करके वो गायब हो जाएगी। इन हाउस जो चेंज लाने के लिए बातें हो रही हैं, इसमें कोई कामयाबी या कोई सदाकत या पीपल्स पार्टी ये काम करने में कामयाब हो जाएगी? सर ये कामयाब हुई तो तभी बात होगी, मुझे तो फिलहाल कोई कामयाब होती नजर नहीं आ रही। एजाज सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ताज़ा तरीन ख़बरें इस्लामाबाद से हमें अपडेट की। मैडम, आप नेशनल असम्बली की मेंबर भी रही हैं। इस वक्त जो ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या आप कोई ख़तरा देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के लिए? सबसे पहले तो तैयब साहब बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और फिर डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें जो है उनको इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ता है। राइट। अनफॉर्चुनेटली जब हम PTI की बात करते हैं तो PTI में वज़ीर आज़म साहब की नीयत पे देखें कोई शक शुबा नहीं है। ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये बात मानने वाली है। लेकिन उनके जो काउंसिल है जो कि उनको सुबह शाम उनके कानों में जो चीज़ फूंकती है उनको देखना पड़ेगा, और जो उनसे डिसीजंस करवा रहे होते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब को जो है डे 1 से ही अजीब से गलत मशवरे दिए गए, जिसकी वजह से आज आप मुल्क की इकॉनमी का हाल देखें, आप मुल्क में बेरोज़गारी देखें, इन्फ्लेशन देखें, हर चीज़ बढ़ती जा रही है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, अवाम में फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा इसलिए भी है कि PTI गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन में ये थे तो इन्होंने लोगों को ख्वाब नहीं दिखाए थे, ताबीरें दिखाई थी। ठीक। और इन ताबीरों की अब जो है ये कीमत वसूल हो रही है कि ये किसी भी सेक्टर को उठा के आप देख लें, किसी सेक्टर में इन्होंने कोई खातिर खा काम नहीं किया, सिवाय लोगों को बेकारी बनाने के लिए वो एक हेल्थ कार्ड है तो कौन सा कार्ड है ये आप दे रहे हैं। आपकी कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है, आपने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे काम नहीं किया, आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे काम किया। और जिस तरह के मुल्क के हालात थे, जिस तरह के प्रॉब्लम्स इनको विरसे में मिले थे PTI गवर्नमेंट को, इनको चाहिए था कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ लेके आते, शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते, ताकि अभी पहले उसको हम जो उनको एक ICU से तो मुल्क को बाहर निकालते, तो आपने तो ये कुछ भी काम नहीं किया उसमें कोई भी चीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी डिसीजन करते हैं आप पार्लियामेंट को जो है वो बाईपास करके आप डिसीजंस कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस आ जाता है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपने नॉन डेमोक्रेटिक रवैये हैं, इसका असर हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी पे होगा और बल्कि हो रहा है। तो अभी भी आप देखिए, अभी जो एक आया, एक दिन पहले सेनेट का वो सेशन था और एक दिन के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो है ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो इस इतनी उजलत में क्यों ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं, क्यों नहीं ये जो ऑपोजिशन लेजिस्लेशन करके बिल पास कराएं, ऑपोजिशन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके आएँ। आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आप पहले बिल टेबल करें, उस पर डिस्कशन हो और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो भी गवर्नमेंट में बैठे कंसेंसस के साथ एक डिसीजन आना चाहिए। तो अभी तक तो हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी और इससे तैयब साहब बड़ा ही अवाम में फ्रस्ट्रेशन है। मैं चूँकि अवाम का नुमाइंदा हूँ यहाँ, और
میں عوام کی پلس کو دیکھ رہی ہوں. عوام بہت پریشان ہے اور 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ ان پہ بہت بڑا کوشچن مارک ابھی سے لگ گیا ہے, کیونکہ عوام اب نکلے گی نہیں, کیونکہ ہر ایک نے ان کے جو ہے خون کیا ہے, ان سے ووٹ لیا, اس ووٹ کو نہ رسپیکٹ دی. جو لوگ یہ کہتے ہیں ووٹ کو رسپیکٹ دیں, وہ بھی آج کیا کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو یہ حرکتیں کی ہیں اور ابھی یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پروٹیسٹ کس لیے کر رہے ہیں. وفاق جو ہے وہ کس چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے, اور ہمارا صوبہ جو ہے یہ کس لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے. اگر ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا اگر ان کا ایک میکروسکوپک انالیسس کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں. NICVD کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا ہو. یہاں انٹیریئر میں بچے کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں, ان کو ویکسین نہیں ملتی, ایک ہی انجیکشن سے آپ ایڈز پھیلا دیتے ہیں. آپ کے سندھ اتنا انرچڈ صوبہ ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اس کے بعد یہ لوکل گورنمنٹ کا جو بل آیا اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ہوا. پھر مہنگائی, بے روزگاری, یہ ساری جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, آپ کتنے سالوں سے تو آپ خود حکومت میں ہیں نا, تو آپ تو یہ بات نہ کہیں, آپ کو یہ بات شوبہ بھی نہیں دیتی. اور جب ہم PTI کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو سندھ حقوق ریلی کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سندھ حقوق ان کو آج یاد آ رہے ہیں جب آپ الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں, آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں, آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کو سندھ وہ یاد نہیں آیا تھا. سوری, میں ایک بات صرف بتاؤں گی کہ سندھ آپ کو اس وقت یاد نہیں آیا جب PIA کا یہاں جہاز کریش ہو جاتا ہے. آپ یہاں ان کے مرہم رکھنے نہیں آتے, آپ انٹیریئر سندھ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. یہاں فلڈ آتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں اس شہر کے جو کہ آپ کا اکنامیکل ہب ہے, اور آپ ان کو دیکھنے نہیں آتے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. میں تو ان دونوں کو حیرت ہے مجھے, اور حیرت ہے ان لوگوں کو جو کہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. میں آپ کے بعد واپس بھی آتا ہوں. آپ نے انٹرو میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہی از دا مین آف کریکٹر. ہمیں پڑھایا گیا کہ کرپشن کے ٹائپس ہوتے ہیں, مورل کرپشن ہوتی ہے, ایتھیکل کرپشن ہوتی ہے, فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے. یہ جو یوٹن ہوتا ہے, کیا یہ جھوٹ ہوتا ہے؟ اگر یہ مین آف دی کریکٹر ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے یا یہ یوٹن صحیح ہے؟ یہ بڑے لیڈر کی نشانی ہے. چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں دادا بھائی صاحب کے پاس. بزنس مین بہت خوش ہیں, ان کو وزیر اعظم صاحب نے ایمنسٹی اسکیم بھی دے دی ہے, اس کے ساتھ بہت سارے پیکیجز بھی دے دیے ہیں, تو اس پہ تفصیلاً ہم بات کریں گے. ویلکم بیک دادا بھائی صاحب. ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے انٹرو میں بھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک مشکل ٹائم پہ, جہاں پہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ کروڈ آئل کی پرائسز انٹرنیشنلی بڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, لیکن آج اس کی پرائسز جو ہے وہ $111 پر بیرل ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 10 روپے کم کیے, 5 روپے جو ہے وہ انرجی پہ کم کیے. یہ پہلے تو یہ بتائیں, یہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے نا 2 چیزیں اناؤنس کی ہیں کہ 2 دن کے اندر. ایک تو جو سبسڈی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور دوسرا ایمنسٹی کچھ دی ہے. ٹھیک. تو جو سبسڈی دی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے حکومت کو تجویز یہ تھی, پیٹرولیم منسٹری نے دی تھی 10 روپے بڑھانے کی. تو پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنے اسپیچ میں کہا میں نے 10 روپے بڑھائے نہیں, اسٹیبل بھی نہیں رکھا, اس کو الٹا نیچے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خالی یہ نہیں, ان نے 5 روپے فی یونٹ بجلی بھی سستی کرنے کا ان نے اناؤنس کیا, اور یہ ٹل جون تک کا کیا, یہ 1 مہینے تک کا کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ان نے اور بھی احساس پروگرام کو 12,000 سے 14,000 پہ لے گئے. IT کو 100% ٹیکس کنسیشن دے دی ہے. فورن جو انویسٹمنٹ آئے گی اس پہ بھی نو کوسچن آسک آن IT کے اوپر. اسی کی طریقے سے IT پہ کیپٹل گین ٹیکس پہ. تو یہ سب کو دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے 237 بلین یا 238 بلین کا یہ ایک آپ پیکیج جو ہے ہمیں یہ پڑے گا. ٹھیک سر. اب اس پہ گورنمنٹ جو ہے اور ویزا وی IMF یہ دیکھنا ہے, کیونکہ IMF کی آپ کو پتہ ہے 4 مارچ سے ورچوئل کانفرنس میٹنگ شروع ہو رہی ہے فار دا 7th انسٹالمنٹ, 7th جو یہ ہمارا وہ ہے ریویو. تو اس میں تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبس کو بڑھا دیں گے اور 50 پیسے فی یونٹ آپ بڑھائیں گے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے تو
IMF को कैसे कन्विंस करेंगे और दूसरा इसको रिकवर कैसे करेंगे। तो देखें जहां तक इसकी रिकवरी की बात है तो इनने गवर्नमेंट ने 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज बनाई हैं। नंबर 1 कहते हैं रिडक्शन इन डेवलपमेंट बजट। अब आपको याद होगा थे वो साहब 550 बिलियन का जो मिनी बजट आया था उसमें भी 23% डेवलपमेंट बजट को इनने कट किया था। तो अब मजीद और कट करेंगे तो इसका मतलब डेवलपमेंट के तो कोई काम होते हुए नजर नहीं आ रहे इस फिस्कल ईयर के अंदर। तो ये अप्रोक्सीमेट 300 अरब हो जाएंगे ये जो प्राइस है, ये जो इनने 237 बिलियन का इनने वो किया है। ठीक जो अच्छा फिर इनने डाइवर्जन किए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि हम डाइवर्ट करेंगे जो डिविडेंड प्रॉफिट जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं जो उनके प्रॉफिट आते हैं जिस पे वो डिविडेंड देते हैं वो भी इसको केटर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नंबर 3 जो अनस्पेंट हमारे पास $1.4 बिलियन है जो कि हमें कोविड की इमरजेंसी की मद में मिला था, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम 1 बिलियन जो है वो हम उससे यूज़ करेंगे, $1 बिलियन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 550 बिलियन का इनने मिनी बजट पास किया था उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 33 बिलियन का कुशन था, तो वो भी कुशन को मिलाएंगे तो हम ये 237 बिलियन का जो हमने कंसेशन दिया है हम इसको इस तरह पूरा kरेंगे। अब आ जाए IMF। जी सर, IMF ओवरऑल देखेगी जी, मेरा ख्याल है कि IMF ने जो हमारे को टारगेट दिया वो 6.9% हमारा फिस्कल डेफिसिट उनने प्रोजेक्ट किया। अब ये जो मुज़ाकरात कल नहीं परसों से शुरू होंगे इसमें IMF को पाकिस्तान हैज़ टू नाउ कन्विंस कि हम ये 6.9% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट से बढ़ेंगे नहीं ये इक़दामात करने के बाद और ये रिकवरी के बाद, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव जी, क्योंकि माइंड यू ये हमने इस वक्त ऑयल प्राइसेस को लेकर रखा और ये एस्टिमेट किया है कि चंद दिनों में मुज़ाकरात शायद यूक्रेन और रशिया के सेटल हो जाएंगे तो ऑयल प्राइसेस भी दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड पाएंगे। लेकिन ऑयल प्राइसेस तो और बढ़ती जा रही है, इस वक्त अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो डिसीजन इस वक्त लिया है ये IMF के ऑब्वियसली स्पेयर से हट के लिया है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जिसको पॉपुलिस्ट डिसीजन लेते हैं हालात को कंट्री के देखते हुए। तो एक तो ये लिया, दूसरा आ जाते हैं आपने सवाल किया ये एमनेस्टी के ऊपर। अब एमनेस्टी जो लाए हैं, अच्छा इस एमनेस्टी के साथ आपने फेटअप को भी लिंक करना है कि क्या कहीं वहाँ तो नहीं फंसेंगे? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि फेटअप पे इसमें फंसते हुए नज़र आ रहा है। ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, जो एमनेस्टी है ये इतनी जल्दी पास की है कि ये सर्कुलेट किया सारे कैबिनेट मेंबर्स को और उन सर्कुलेशन में अप्रूव कराकर इनने जो लाए हैं उसके अंदर ये कहते हैं कि जो आपका काला धन है वो आप अगर इंडस्ट्री में लगाएंगे 5% पे आप उसको वाइट कर सकते हैं। आसान ज़बान में समझा दूं तो 1 अरब का अगर आप ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो 5 करोड़ देकर आप 1 अरब को वाइट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, इन्वेस्टर को बोला गया कि आप नए इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं नए कंपनी बनाकर, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो BMR के लिए ले सकती हैं। आपको याद होगा लास्ट एमनिटी में तो 1% पे इनने BMR और इस सब के लिए दिया था। एक बात इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है क्योंकि एंड में ये कहते हैं जिनने लास्ट टाइम अवेल किया उनको हम ये नहीं देंगे। तो अब दूसरी बात पे आता हूँ। फिर ये कहते हैं कि कट ऑफ डेट इसकी 22 दिसंबर होगी और इसको लगना चाहिए बाय जून 2024। ओवरसीज़ के लिए अगेन मैं आपको बताऊँ जो है दोबारा उनको बेनिफिट दिया ओवर द लोकल इन्वेस्टर। ये कहा गया है कि 5 ईयर का उनको टैक्स हॉलीडे होगा, तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं, जबकि फॉरेन FDI पाकिस्तान में कभी भी बिग वे में नहीं आकर दिया। इसी तरीके से इन्होंने फिर ये भी कहा जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जिनका 3 साल से ज़्यादा लॉस हुआ है और उनको आप एक्वायर कर सकते हैं हेल्दी कंपनीज। अब ये जो रिबेट दिया ना, नो क्वेश्चन आस्क ऑन द फॉरेन फंडिंग, तो ये तो FATF के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एग्जैक्ट खिलाफ जाती है। उसका भी रिव्यू हमारे पास अभी पेंडिंग आ रहा है। हालांकि इस दफ़ा हमने FATF के सारे पॉइंट्स मुकम्मल कर दिए और वेस्ट के साथ हमारे कोई ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। वो एक दूसरा फॉरेन पॉलिसी का एस्पेक्ट है जहाँ पे हमने एक दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट भी कहा और इस वक्त जो देख रहे हैं रशिया भी चले गए हैं। खैर रशिया की विजिट तो देखें पहले से प्लान थी, नोबडी न्यू, लेकिन वो सर बट ऐड हो रही है, ऐड तो हो रही है, ऐड होगी डेफिनेटली इस कंसिडरेशन में ऐड होगी। तो फेटअप पे भी हमारे को इस पे एक इम्प्लीकेशन आते हुए नजर आ रही है। फिर इसके साथ साथ इनने एमनेस्टी के अंदर एक और भी बात की है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो 5 साल से इधर नहीं आए या रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनने फॉरेन में एसेट डिक्लेयर किया है वो भी ये स्कीम ले सकते हैं। देखिए मेरा इसमें तेबो साहब कंक्लूजन अगर आप मेरा पूछें
تو پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ یہ پیسہ ریکور کر سکیں گے جو آپ نے 4 پرونگ اسٹریٹجی بنائی ہے، اور سیکنڈلی کیا آپ آئی ایم ایف کو اس کروشل جنکشن پہ جس کے لیے آپ نے اتنا سب کچھ کر دیا، انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ بینک کر دی، کرائے کر دیے، پیٹرولیم لیوی لگا دی، سر چارجز ہو گئے، تو آپ اس کو کنونس کر سکیں گے؟ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا سر کہ یو ٹرن بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ بڑھا کے پھر کچھ دن کے بعد بڑھا دیں، تو یو ٹرن بھی تو وزیر اعظم صاحب کہتا ہے نا کہ وہ ہو جائے گا، اس میں کوئی ایشو تھوڑی ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاپولر ڈیسیشن انہوں نے لیا بیکاز آف دا پریشر دیٹ واز ماؤنٹنگ لوکلی پاکستان کے اندر، جو اس وقت ایک مہم چل رہی ہے، تو یہ اس کا ڈیسیشن ہے، بٹ اس کو لانگ ٹرم سسٹین کرنا میری نظر میں یہ تھوڑا یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے۔ ایمبیسڈر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کوئٹہ میں اب اٹیک ہوا ہے جس میں پولیس موبائل کے ہوا ہے، ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹ خبر ہے، اس کے ساتھ 3 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ٹیررزم کی خاص طور پہ یہ لہر آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو لنک ہے وہ کوئی افغانستان سے ہے یا یہ ہمارا انٹرنل ہے؟ یس، انٹرنل مسئلہ ہے بٹ سپورٹڈ بائی فارن پاورز۔ انسرجنسی، اور پھر اگر آپ 5000 لڑاکو قسم کے ملیٹنٹس کے ساتھ ہوں یا 2000 یا 3000، آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جو گوریلا وار کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان کا پہلے یہ اندازہ لگیں کہ روزانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ ایزی ٹو سسٹین آرمی آف 2000 3000، یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس 5000 ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بھائی میں ان سارے سرداروں کو تقریباً جانتا ہوں جو اس انسرجنسی کے ساتھ یا تو ہمدردی رکھتے ہیں یا اس پہ خاموش ہیں، ان کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے جو اس یعنی انسرجنسی کو سپورٹ کر سکے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پیسہ اگر ان کو اندر ملک سے نہیں مل رہا، اتنے ان کے ورکر ہیں، تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ فارن کنٹری سے آتا ہے نا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اوپنلی پبلک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اسٹارٹنگ فرام بلوچستان۔ اور وہاں پہ ان کا جو پریزنس تھا بفور طالبان، انہوں نے جہاز بھر بھر کے وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے، کون لوگ تھے؟ سارے عراق کے تھے۔ اور پھر افغان وہاں پہ جو پریویس گورنمنٹس کے تھے، ان کی مرضی، ان کی ٹیسٹ مرضی، کنائیونس کے ساتھ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے نا بلوچستان میں انڈیا والے کر رہے تھے۔ بالکل اگر ان کا سپورٹ نہیں تھا تو وہ کنائیونس ضرور تھی۔ اب آپ مجھ سے یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی وہ تو قرآن بھی چلے گئے، انڈیا نے بھی وہاں سے سامان اپنا بوریا باندھ کر واپس آ گیا، اور وہاں پہ تو اب تو آپ کے فیوریٹ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے وہ اتنے فیوریٹ نہیں ہیں، لیکن چلو اگلے جو حکمران تھے ان سے بہتر ہیں کہ اب ان کو سپورٹ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اگلوں سے یہ بہتر ہے؟ آئی تھنک دے آر کمپیریٹیولی بیٹر دین، کیونکہ ابھی وہ تو اپنے مشکلات میں پھنسے ہوئے، اس لیے ہمیں زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ رکھنی نہیں چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو آپ یہ کوشچن کریں گے اب تو وہاں نہیں رہے تو اب ان کو کون دیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ لیبیا میں بیٹھے ہوں یا عراق میں بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے کہ جو آپ کے پراکسیز ہیں ان کو پیسے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتے ہیں۔ ٹھیک، ایک ہسٹری یہ ہے کہ لیبیا میں بیٹھے ہوئے تھے معمر قذافی، اگر فلپین میں ٹیررسٹ گروپ کو فائنانس کر سکتے تھے، یا کچھ لوگ ملک اور جگہ بیٹھے ہوں اگر وہ حزب اللہ کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں، یا جو ہے تو انڈیا کہیں پہ بھی کہیں سے اپنے ملک میں بیٹھ کے بھی ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ بہت سے طریقے ہوتے ہیں ان کے۔ تو سوال یہ ہے یہ چلے گا کچھ عرصے، سولوشن کیسے آئے کہ بہتر گورنمنٹ کے لیے یہ ہوگا کہ دیکھیں اس وقت میں کہ آپ کو بتا دوں، میں علاقے اور ٹرائبس کا نام لے کر آپ کو بتاؤں، ان انسرجنس کو جمالیز ٹرائب میں، رند ٹرائب میں
या अगर आप कहें पंद्रानी ट्राइब में, जहरी ट्राइब में, जाम ट्राइब में कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, दे आर ऑल प्रो एस्टेब्लिशमेंट, और जो है वो बैठे हुए हैं, हुक्मरानी भी कर रहे हैं और उनके ताल्लुकात जो है। अगर आप हमदर्दी की बात करें तो शायद जो मेंगल का इलाका है वहाँ से, या तुर्बत में जो है ना मिडिल क्लास के लोग हैं। अब सारे सरदार जो है ना वो साइड लाइन हो गए, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन्होंने इंसर्जेंसी की जो है वो बागडोर संभाली हुई है, वो सरदारों की भी नहीं सुनते। और जितने भी आप देखें, अगर अल्लाह नदर की बात करते हैं आप, तो ही वॉज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट था, मिडिल क्लास से था। अगर किसी और लीडर का नाम ले ले, सारे मिडिल क्लास के लोग हैं। तुर्बत का इलाका वो गरीब इलाका है जहाँ से ज़्यादातर अक्सरियत में ये लोग हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि जो गवर्नमेंट को चाहिए कि रिकनसाइलेबल हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था, उनके साथ रिकनसाइल कर लें। देखिए, बलूचिस्तान का मसला कॉम्प्लिकेटेड भी है और आसान भी है। मैं कहता हूँ कि जो आपके साहली इलाके हैं, जो समंदरी रिसोर्सेज हैं, आपके बलूचिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उसमें अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड ले लेंगे और उनके साथ बैठ के ओनरशिप में उनको हिस्सा दे देंगे, बलूचिस्तान में ये सूरत हाल नहीं। उनकी शिकायत क्या है कि ये रिसोर्सेज में हमें डिप्राइव किया जा रहा है, फेडरल सर्विसेज में हमें डिप्राइव किया जा रहा है। बलूचिस्तान की आबादी कुल कितनी है, उसको अगर डिवाइडेड बाय एवरेज 5 मेंबर पर फैमिली उससे डिवाइड कर लें तो 1 लाख आपको जॉब चाहिए। 1 लाख जॉब फेडरल गवर्नमेंट से आप इनको दे दें बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान विल बी द मोस्ट प्रॉस्परस एरिया। वेरी एक्सीलेंट सोल्यूशन। मैडम, अभी मैं आपके पास आऊँगा। आपने पहले अपने इंट्रो में कहा कि वज़ीर आज़म साहब इज़ द मैन ऑफ द कैरेक्टर। अब उसमें बात हमने कही कि ये जो आप करप्शन के टाइप्स होते हैं, मॉरल करप्शन, एथिकल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, तो वज़ीर आज़म साहब जो बातें करते हैं फिर उस पर यू टर्न लेते हैं, तो वाकई आप समझती हैं कि ये ही द मैन ऑफ द कैरेक्टर? देखिए, मैन ऑफ कैरेक्टर मैंने इसलिए कहा कि देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, आज भी मैं उनको पॉलिटिशियन नहीं समझती हूँ, आज भी मैं उनको एक खिलाड़ी समझती हूँ। ठीक है। और वो खेल के मैदान में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, और वो ही जो उनका नक्शा और खाका है वो हमारे जहनों में आज भी है। जब पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो उनको अनफॉर्चुनेटली जो लोग, मैं कहती हूँ उनकी नीयत में मुझे कोई आज भी वो नहीं है, शक नहीं है। वो शायद कुछ बेहतर करना चाहते हों, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनको मशवरे देते हैं, जो उनके दरबारी हैं, ये सही वर्ड जो है ना यही है उनके लिए, कि वो हर वक्त यही राग अलापते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वज़ीर आज़म साहब ख़ुद बाहर आके देख नहीं रहे कि हालात किस तरह से ख़राब होते जा रहे हैं। वो एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के बाद उनको वो कह देते हैं कि जी ये तो गलत है, इसको आप यू टर्न कर लें। इससे उनकी शख्सियत ख़राब हुई है। मैंने 12 दफ़ा ये बात की कि जो यू टर्न्स का जो स्पेशलिस्ट हुकूमत आ गई है, इसने तो तमाम रवायात को बाले ताक रख दिया है। कोई एथिक्स, कोई मॉरल एथिक्स जो हैं वो रहे ही नहीं हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब कोई बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का एक वज़ीर खड़ा होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो बात कर रहा होता है जो कि उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। और आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वहाँ जितनी भी ये, अगर हम पीटीआई को देखें तो हर एक लीडर है वहाँ, वो वर्कर तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई वो कारकुन लेवल की तो पार्टी नहीं है यहाँ। या तो आप देखिए तो एटीएम मशीनें हैं, या उनके फ्रेंड्स हैं जिनको उन्होंने ऑब्लाइज करना है। आवाम कहीं नहीं है इनकी प्रायोरिटी में। अगर प्रायोरिटी में होती तो आज आपको बहुत सारे उनके फैसलों में ये नज़र आता, बहुत सारे स्टेप्स में जो ये नौजवान की बात करते थे। आज आप बताइए कि आज का नौजवान जो है वो खुदकुशी कर रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएट करके वो घरों में बैठे हुए हैं। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोग अपना सीवी जमा करा रहे होते हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए। एक एमबीए स्टूडेंट जो है वो हमें ये कह देता है कि हमें कहीं क्लर्क की जॉब
दिलवा दें। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो अभी ये जो बात हम कह रहे हैं ना इंटरनेशनली और जो टेररिज्म की बात करें, मैं आपको इससे ये बिल्कुल जोड़ूंगी। मेरे भाई ने बड़ी ठीक बात की कि इंटरनली भी इश्यूज़ हैं। जब आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी तो जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो बहुत आसानी से कोई भी फॉरेन एलिमेंट उनको ख़रीद सकता है और उनको आपके मुल्क के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकता है। और हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने 12 दफ़ा ये बात की है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वज़ीर आज़म साहब ने अभी भी ये बात ना समझी और अभी भी इमेच्योर बिहेवियर रखा और इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स और इमेच्योर किस्म के डिसीजंस लेके आए तो ये जो टेररिज्म है ये बढ़ेगा, ये कंट्रोल नहीं होगा। ये ऑक्टोपस है, इसने अपने अब टांगे वो जो है उनके वो आर्म्स खुल गई हैं तो वो अब आर्म्स इस तरह से काबू में आएंगी नहीं, इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ेगा। राइट फजल करीम दादा भाई साहब, मैं इसी सवाल पे आपसे आऊँगा। एक तो अगर हम कराची में देखें तो यहाँ पे जो ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम है, वो स्ट्रीट क्राइम इतना ही स्ट्रीट क्राइम लाहौर में भी है। और अगर देखते हैं तो ये जो रीसेंट एक टेररिज्म की एक लहर आई है जिसमें हमारे पुलिस के जवान, हमारे आर्मी के इंस्टीट्यूशंस जो है उन पे अटैक हो रहा है, इसका मेन रूट काज है क्या? देखिए, जो लोकल आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है दैट हैज़ टू डू विद योर इकोनॉमिक डिप्रिवेशन। ठीक, जैसे बहन ने कहा, सर ने बताया कि जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, मवाद नहीं होंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो फिर क्या करेगा इंसान? फिर वो रिजॉर्ट करता है क्राइम पे। ये तो बहुत पुरानी एक वो है, थ्योरी है कि जब नहीं होगा कुछ, मरता क्या ना करता वाली बात है। जहाँ तक इंटरनेशनल टेररिज्म का सवाल है, देखें पाकिस्तान को बहुत ही हॉस्टाइल तरीके से पिछली जब गवर्नमेंट थी, ये अमेरिकन लेड जो गवर्नमेंट थी, तो आपको याद होगा कि 5 मिशंस खोले हुए थे इंडिया ने जहाँ पे 3000 लोग नहीं थे। और वो मिशंस क्या कर रहे थे? एस्पेनाज कर रहे थे और पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी फैला रहे थे। नोटेड बातें, BLA के लोग जाकर मिल रहे थे न्यू दिल्ली में, जो इनकी वो है, उनकी सरपरस्ती थी। अब क्योंकि वो वहाँ से हटे हैं, लेकिन अफगानिस्तान अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। आप देखें उनकी गवर्नमेंट अभी तक कंट्रोल पूरी तरीके से मुल्क का नहीं संभाल सकी है। तो लिहाजा जो TLP है, TTP है, उनकी रूट्स वहाँ पे हैं, तो उनको वहाँ से जो है वो बैठ के अभी भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कुलभूषण यादव की स्टेटमेंट देख लें, वो इतनी कंक्लूसिव है कि किस तरीके से किस तरह एक्टिविटियाँ प्लान हो रही होती थी। तो नो डाउट हमारे जो खत्ते में हैं, और हम इंडिया जिसको मैं कहता हूँ, जिसके खुद के अंदर 5, मैंने आपके शो में बोले ISIS के 5 ट्रेनिंग कैंप्स, वो मैंने जगहों के साथ बताए जो हमने डोजियर दिया था, उसमें मेंशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने। तो ISIS के तो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप हैं, वहाँ से तो वो ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया का रोल खुद आया हो गया है। आप देखें अमेरिका में 4.5 मिलियन डायस्पोरा है, 6 मिशन हैं वो, इंक्लूडिंग 1 एम्बेसी। इधर 5 मिशन 3000 लोग नहीं थे, तो क्या कर रहे थे? तो ये जो है इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखने के लिए इंडिया का बड़ा सरगर्म रोल है, और वेस्टर्न फोर्सेस भी। इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को ख़ास तौर पे इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, फॉरेन ऑफिस नहीं, इस वक्त आपको आपकी गवर्नमेंट का विजन होना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोकल आपकी वो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब, वो तो आपका इकोनॉमिक डिप्रिवेशन। जहाँ तक इसका है तो इसके लिए तो देखें एक जामे पॉलिसी बनी हुई है। हर रोज़ हमारे भाई बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तो इसको तो आप तब रोक सकते हैं जब आपके वहाँ पे, अब तक तो हमने रोका है। आप देखें सबसे ऑपरेशन ज़र्ब हमने जो किया, राह रास्त किया, हमने ये इस पर सक्सेस हासिल किया। कोई आर्मी ऐसे नहीं कर सकती, इवन US और NATO फेल हो गए। अब ये थोड़ा थोड़ा स्प्रॉडिक उठ रहे हैं। असल मसला इज़ इन अफगानिस्तान। दैट इज़ वाई वी से कि अफगानिस्तान कंट्रोल होगा तो पाकिस्तान स्टेबल होगा। दैट इज़ द इक्वेशन। आपने अपने पहले इंट्रो में भी कहा था कि रशिया और यूक्रेन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होगा तो स्टेबिलिटी भी आएगी, महंगाई भी कम होगी, फ्यूल प्राइस। तो आप, हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का ये जो डिस्प्यूट है ये कब ख़त्म होगा? देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए ये जो वेस्ट सैंक्शन लगा रहा है ना, ये डबल एज वेपन है। 70% एनर्जी जो जा रही है वेस्ट को, वो रशिया से ही जा रही है। तो ये ज़्यादा चलेगा नहीं। इवेंचुअली रशियंस विल प्रिवेल ऑन दिस। तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा, होना चाहिए उससे, मतलब इट शुड एंड विद इन नेक्स्ट 7-10 डेज के अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फजल करीम दादा भाई साहब, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा,
एम्बेसडर आलम बरोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।